Uh, Dear students, today we will discuss about the logistic growth model. In population growth, yesterday we will discuss about the J-shaped population growth form. And what is the population growth? Today we will discuss S-shaped population growth form, and we will also discuss about the logistic growth model. This form यानी S-shaped population growth form, this form shows sigmoid growth curve. In this diagram we can say there is a sigmoid graph. This form shows sigmoid growth curve. This is the sigmoid growth curve where the population size and this type of growth curve, population size changes against time. Yes, the population size or number of individual change as well as द टाइम इज चेंज. जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है पॉपुलेशन की संख्या या पॉपुलेशन साइज भी परिवर्तन होता है. द पॉपुलेशन शोज एन आइडेंटिकल ग्रेजुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज. इन दिस टाइप कर्व द पॉपुलेशन शोज एन इनिशियली यानी शुरुआत की स्टेज में इनिशियली ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुअली इनिशियली इन दिस डायग्राम we can show initially gradual increase in the population size and followed by, and this diagram, this graph curve, we can say this is followed by exponentially. यानी दिस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आया है, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ followed by an exponential increase, then a gradual decline to near constant level, and this is the constant level and here is the negative acceleration or decline phase. So in sigmoid growth form we can see 5 phases. Number 1 lag phase, number 2 positive acceleration phase यानी increase in growth, third is increase but exponential increase in population, fourth is negative यानी decline in population growth, and fifth is stationary यानी constant in population. And in this type of population growth model we can explain that there is environmental condition which affect any of the population. Environmental condition like temperature, pressure, and very important condition is food and habitat. Shelter is also important for population growth. So these conditions affect the population growth, and in these conditions, reflection of these conditions we can see in the S shape or sigmoid shape population growth. And if we plot time in एक्स एक्सिस, अगर हम ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करें और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को वाई एक्स पर प्लॉट करें, तो इस तरह की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी आएगी वो होगी सिग्मोइड शेप की पॉपुलेशन ग्रोथ. यानी सिग्मोइड शेप की पॉपुलेशन ग्रोथ कब आती है? जब किसी भी प्लांट या एनिमल की पॉपुलेशन को उसके एनवायरमेंटल फैक्टर, फूड रिक्वायरमेंट्स और अन्य जो शेल्टर और हैबिटेट के फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं. तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो सिग्मोइड शेप के अंदर आती है. और इस सिग्मोइड शेप की पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं. यानी 5 स्टेप के अंदर ये सिग्मोइड शेप की ग्रोथ हमें प्राप्त होती है. ऐसा इसलिए होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए ये करती है क्योंकि सभी फैक्टर जैसे जैसे पॉपुलेशन की संख्या यानी इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ती है वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं. फूड के लिए, शेल्टर के लिए कंपटीशन होता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाती है और कुछ समय बाद ये कांस्टेंट हो जाती है. सो इन एस सेफ
curve, there are 5 steps. Number 1 is lag phase. Lag phase is the very initial phase, period where individual adapt to the new environment. यानी आपने किसी प्लांट एनिमल्स की स्टडी करना चाह रहे हैं और उसको नए एनवायरनमेंट के अंदर आपने उसकी पॉपुलेशन स्टडी करना चाहते हैं, तो न्यू एनवायरनमेंट या एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में जब आपने स्टडी चालू किया है तो न्यू एनवायरनमेंट के साथ में वो इंडिविजुअल सबसे पहले एडेप्ट होता है, तो उसे कहते हैं लैग फेज। नेक्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, यानी इंक्रीज इन ग्रोथ, period where slow increase in the population. In initial stage the population growth increase is very slow. In J-shape curve we also see that in J-shape initially population increase is also very slow, but at second step or third step in J-shape there is huge changes in the population growth and which is known as exponential growth. Here the third step is also important, and third step here is also known as exponential growth or logarithmic growth phase. The period of logarithm exponential growth phase, rapid rise in the population due to availability of food, यानी संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि होती है क्योंकि जो फूड है वो बहुत अधिक मात्रा में मिला हुआ है और जो शेल्टर है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए शेल्टर या हैबिटेट की भी कोई कमी नहीं है। एंड रिक्वायरमेंट इन प्लेंटी, नाउ नो कम्पिटिशन, क्योंकि संख्या अभी शुरुआत हुई है, जो संख्या इंडिविजुअल्स की संख्या में अभी बहुत कम संख्या में है, इसलिए वहाँ पर कोई नो कंपटीशन, वहाँ एक दूसरे का कोई कंपटीशन नहीं। With abundance of resources, the population expands exponentially, और इन रिसोर्सेज की उचित मात्रा या अबंडेंट मात्रा होने के कारण ये एक्सपोनेंशियली expands exponentially into the habitat. And fourth, negative acceleration phase or transition phase period. This is negative acceleration phase. Here is the negative acceleration phase. Here the period in which there is a slow rise in population as the environment resistance in, जैसे जैसे पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन के इंक्रीज की जो दर है, पॉपुलेशन तो बढ़ती है लेकिन जो रेट है वो बढ़ने की जो रेट है वो कम हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जिस गति से यहाँ बढ़ी है, जिस तेजी से ये रेट बढ़ी है वो तेजी यहाँ नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। और ये इसलिए होता है रेजिस्टेंस टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की संख्या में बढ़ती है, जिसलिए क्या होता है रिसोर्सेज, देयर इज रिडक्शन इन द रिसोर्सेज एंड अदर limiting factors, so the rate of increase in the population is declined. As the population grows and later there will be increase in competition between the individual, that population for same resources, resulting in the survival of some and elimination the other. The rate of population increase slow along with the reduced rate of population growth. There will be selection for survival and reproduction of these individuals within the population which are best suited for explore the resources. स्टेशनरी फेज, लास्ट जो इस ग्रोथ फॉर्म के अंदर है वो है स्टेशनरी फेज, एंड दिस फेज इज आल्सो नोन एज द पॉपुलेशन प्लेटू का मतलब पठार, यानी स्तर हो गया है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो अब स्थिर है, पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ रही है। तो हेयर द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट ओवर कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम, मे बी फॉर जनरेशन, यानी ये एक लंबे समय तक भी हो सकती है, छोटे समय तक भी हो सकती है, या कई जनरेशन तक भी वो पॉपुलेशन कांस्टेंट हो सकती है। द कंसिस्टेंसी
इन पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट, और ये पॉपुलेशन का स्थिर होना क्या इंडिकेट करता है? नेटेलिटी मतलब बर्थ, इमिग्रेशन यानी आने वाले, मोर्टिलिटी डेथ, एमिग्रेशन यानी जाने वाले, ये क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। नेटेलिटी प्लस इमिग्रेशन इज इक्वल टू मोर्टिलिटी प्लस emigration. At this point in the time, the population size is determined by carrying capacity, and here when the population becomes constant, the population is determined by a symbol k. k is denoted for carrying capacity, यानी जो पॉपुलेशन है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पर जब कांस्टेंट हो जाएगी पॉपुलेशन तो हम उसको के, कैपिटल के से दर्शाएंगे, और ये कैपिटल के इसलिए आया है कि उस हैबिटेट की ये कैरिंग कैपेसिटी, यानी इतनी कैपेसिटी की इंडिविजुअल्स की संख्या को वो हैबिटेट कैरी कर सकता है, सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ। So this is the second growth form or segment safe growth form of the population. And related to this, here is the logistic growth model given by population biologists to explain this growth form. So the logistic growth model, the population growth is under influence of many factors. I already explained the many factors influence the population. Thus there are limitation of the population growth. The exponential equation is applicable till the situations are unlimited. अगर situations और resources unlimited है तब तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल मॉडल के अनुसार होगी, या वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेगी। एंड आर इज कांस्टेंट, और वहां पर आर कांस्टेंट रहेगा। एन डज नॉट डिक्रीज, और नंबर डिक्रीज नहीं हुआ, किसमें? एक्सपोनेंशियल। एनरोलमेंट इज सेम, यानी लगातार उसकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, जितना बढ़ रहा है उसी गति से बढ़ रहेगा। देयर इज नो एमिग्रेशन इमिग्रेशन, और अगर यानी पॉपुलेशन सब कुछ आइडियल कंडीशन होगी तो जो आर है वो कांस्टेंट हो जाएगी और पॉपुलेशन स्थिर हो जाएगी, वो लगातार तेजी से बढ़ती रहेगी, कोई एमिग्रेशन और एमिग्रेशन नहीं होगा। परंतु नेचर के अंदर इस तरह की बट इन नेचर इट इज नॉट पॉसिबल एंड टू प्रिडिक्ट द ग्रोथ पॉपुलेशन अंडर लिमिटेशन, यानी नेचर के अंदर इस तरह की पॉसिबल नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन अनंत समय तक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर सके। इसलिए आगे चल के वैज्ञानिकों ने जो माल्थस की थ्योरी है उसके अलावा एक नया मॉडल दिया जिसको ग्रोथ मॉडल, वो जिसको लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहा जाता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट, बेल्जियम के वैज्ञानिक मैथमेटिशियंस ने ये दिया था मॉडल। बेल्जियन मैथमेटिशियन पेरी फ्रांकोइस वारहॉल्स in 1838 who suggested that the rate of population increase may be limited, यानी पॉपुलेशन की दर लिमिटेड समय तक बढ़ती है by the population density, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे ही जैसे बढ़ जाती है ये पॉपुलेशन ग्रोथ की इंक्रीज होने की रेट है ये ऑटोमेटिकली लिमिट्स हो जाती है, ये रुक जाती है। An identical model was proposed by Raymond Pearl and I.J. Reid in 9, इसी को मॉडिफाइड किया गया पर्ल I.J. रीड द्वारा 1920। एंड नाउ दिस मॉडल यानी लॉजिस्टिक मॉडल इज आल्सो नोन एज वारहॉल्स-पर्ल लॉजिस्टिक मॉडल। The model proposed that when a population start growing, resources are ample, but as the density increase, competition for resources arise and get incentivized
with further increased density. As a result, यानी इसका मतलब है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, और पॉपुलेशन की जैसे ही संख्या बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, वहां पर इंडिविजुअल्स में कंपटीशन चालू हो जाएगा। किसके लिए? रिसोर्सेज के लिए। और उसके बाद जो इंक्रीज होना है डेंसिटी में या ग्रोथ में, वो रुक जाएगा। एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और इसके परिणाम स्वरूप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइंस विद पॉपुलेशन नंबर, यानी जो पॉपुलेशन की जो रेट है, वो जो बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, वो डिक्लाइन हो जाएगी। एंड रीचेज जीरो, और उसके बढ़ने की जो दर है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हेयर n इक्वल टू के, यहां पर n का मतलब है वो संख्या, इंडिविजुअल्स की वह संख्या जो कि कांस्टेंट लेवल पर है, यानी पॉपुलेशन बढ़ने की दर जब स्थिर हो गई है, उस समय इंडिविजुअल्स की संख्या को हम कहेंगे n, और n इज द कैरिंग कैपेसिटी, सो n इज इक्वल टू k, यानी जो इंडिविजुअल्स की संख्या n होगी वो ही संख्या k की होगी। सो एट द कांस्टेंट लेवल n इज इक्वल टू k, एंड पैरामीटर k इज द अपर लिमिट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इससे आगे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, स्थिर जरूर हो जाएगी। इट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए certain population that can survive in a given habitat. The carrying capacity defined as the maximum number of individual of a certain population that can survive in a given habitat. This is the definition of carrying capacity. It is assumed that any number of individual beyond k, it is assumed that any number of individual beyond k simply cannot survive, यानी k से अधिक अगर कोई भी इंडिविजुअल संख्या में वृद्धि होगी या कोई इंडिविजुअल्स आएगा, वो सरवाइव नहीं करेगा। वो उसको क्या करना होगा कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ k पर पहुंच जाएगी, उसके बाद अगर पॉपुलेशन में और अधिक वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, तो उसे वो सरवाइव नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? आइदर दे डाई, इफ, या तो वो मरेंगे या दे माइग्रेट ए बेटर प्लेस, ये अर्थात या तो वो मरना होगा उनको या उनको किसी उचित स्थान पर जाना होगा। द डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन अंडर दिस सिचुएशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द लॉजिस्टिक इक्वेशन, और इस डायनेमिक्स यानी इस परिवर्तन को, ये जो चेंज आएगा पॉपुलेशन की इनिशियल संख्या से कांस्टेंट आई और कांस्टेंट में फिर क्या होगा, उसको समझाने के लिए लॉजिस्टिक मॉडल द्वारा एक इक्वेशन दी गई है, जिस इक्वेशन को कहा जाता है लॉजिस्टिक इक्वेशन, दैट इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू r, स्मॉल r कैपिटल N, स्मॉल r इनटू कैपिटल N into k minus n upon k. So this is the known as logistic equation. The 1 minus n upon k is unutilized opportunity for population growth. Logistic model has two equilibrium. लॉजिस्टिक मॉडल के अंदर क्या है? टू इक्विलिब्रियम है। इनिशियली n इज इक्वल टू 0, इनिशियली पॉपुलेशन शुरुआत थी, और लास्ट मोमेंट पर n इज इक्वल टू के, n का मान कितना हो गया? k हो गया। द फर्स्ट इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, यानी n इज अनस्टेबल, क्योंकि वहां पर जैसे ही पॉपुलेशन आएगी वो इंक्रीज होगी। सो दिस इज द अनस्टेबल बिकॉज एनी स्मॉल डेविएशन फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम विल लीड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। The second equilibrium is stable because a small disturbance in population return to this equilibrium state. अगर यहाँ पर n is equal to k is stable, यहाँ पर n is equal to 0 is not stable, क्योंकि अगर उसमें कोई भी डिवेरिएशन होगा पॉपुलेशन ग्रोथ चालू हो जाएगी।
लेकिन k n इक्वल टू k देन इट इज द कांस्टेंट। अगर इसमें थोड़ा भी चेंज आता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी। द टू इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिप्रोडक्शन एंड कंपटीशन आर इन्वॉल्व इन दिस लॉजिस्टिक मॉडल। यानी इस लॉजिस्टिक मॉडल को या ऐसे फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए रिप्रोडक्शन एंड कंपटीशन दो इकोलॉजिकल इवेंट्स है, उनका बहुत अधिक योगदान है। बोथ दीज प्रोसेस आर डेंसिटी डिपेंडेंट। ये क्या है, डेंसिटी पर निर्भर कर। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज एग्जिबिटेड बाय लॉन्ग लिव्ड स्पीशीज एंड इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम। Time lag. The logistic equation suggests that the population function as a system which is regulated by positive और नेगेटिव, यानी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक द्वारा ये कंट्रोल हो जाता है। द पॉजिटिव फीडबैक इज मोस्टली बाय रिसोर्सेज, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉजिटिव फीडबैक का है रिसोर्सेज, दे स्टिमुलेट द ग्रोथ, वाइल द नेगेटिव फीड किससे आएगा, कंपटीशन। पॉजिटिव किससे आएगा, रिसोर्सेज से। As the n approaches k and the density dependency work, even these factors do not work smoothly and many a time k is not achieved, and this occurs because the certain lags. The two important lags are reaction time lag. This was denoted by Kraft 1985. It is the lag between environment change and corresponding change in the rate of population growth. Including this logistic equation, the equation is modified as dn upon dt is equal to r into n k minus n t minus w upon k. And second one is reproductive time lag g. It is the lag between environment change and consecutive change in the derivations of reproductive maturity. In corporation of this, the equation modifies as dn upon dt is equal to r n t minus g k minus n t minus w upon k. Both these time lags result in the फ्लक्चुएशन, और इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ ब्रिंग राइज एंड फॉल फ्रॉम के। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पॉपुलेशन जो के पर पहुंच गई है वो उससे भी डाउन आगे चली जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज का कंपटीशन होता है। रिसोर्सेज अगर आपने और सप्लाई नहीं की तो है उस हैबिटेट में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। तो थैंक यू। दीज आर द टू मॉडल्स और growth forms of population growth. Thank you.